गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशंस ऑफ अमीन्स ने कंप्लीट की थी। अमीन्स फ्रॉम रिडक्शंस ऑफ नाइट्राइज, रिडक्शंस ऑफ ऑक्साइम्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, रिडक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशंस, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टी एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। तो ये हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम लेके चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में जो सबसे पहले हमारा है इनका बेसिक नेचर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज basic nature. Amines are basic in nature. Amines are basic in nature due to presence of lone pair of electrons or NH2, in which nitrogen have one lone pair of electron. It can donate this lone pair of electron and hence it is basic. RNH2 when treated with water, it produces RNH3 positive plus OH negative. The solutions of amines are basic in nature due to presence of OH ion, where this basic nature is also due to presence of lone pair of electron, where amines donate its lone pair to the H positive ions. Now Kb is equal to RNH3 positive concentration of ammonium salt plus OH negative multiplied by OH negative ions concentration divided by RNH2 concentration of amines. Larger the value of Kb, more will be basic strength. Larger the value of Kb, more will be basic strength. Larger the value of Kb, more will be basic strength. Or you can say PKb. PKb is equal to negative log of Kb, and less the value of PKb, more will be basic strength. Lower the value of PKb, more will be basic strength. तो इस तरह से कंपेयर Kb या PKb से हम दो अमीन्स के बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर भी कर सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस एज कंपेयर टू अमोनिया. Amines are more basic than ammonia. Amines are more basic than ammonia. Reason, because of plus I effect of alkyl group, which increase electron density, on nitrogen atom. This alkyl group in primary amines have plus I effect, electron releasing effect. Due to this electron releasing effect, it increases the electron density on the nitrogen atom, and hence tendency of nitrogen atom to donate electron pair also increases. Now let us compare the basic strength of aromatic and aliphatic amines. Aromatic and aliphatic amines.
aromatic amines are less basic than aliphatic amines. The reason is, in aromatic amine, lone pair of electrons are involved in resonance, whereas in aliphatic, alkyl group having plus I effect increase the electron density of the nitrogen atom and hence increase basic nature. In aromatic amines, which is also called aniline, benzene amine is also called aniline, lone pair of electron is involved in resonance and hence not available for donation. So basic nature of aniline is less than एलिफेटिक से एनिलीन का बेसिक नेचर कम होता है क्योंकि लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. नाउ लेट अस कंपेयर द बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड tertiary amines. Basic nature of primary, secondary and tertiary amine is studied in two different cases. First is in gaseous phase. In gaseous phase, only plus I effect works. ओनली प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ही यहाँ पर काम करेगा और ये आपको ध्यान रखना है. प्लस आई इफेक्ट जो वो इंक्रीज बेसिक नेचर एंड माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज बेसिक नेचर. जबकि एसिडिक नेचर के लिए बिल्कुल इसका रिवर्स होता है. एसिडिक नेचर के लिए क्या होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक नेचर एंड माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज एसिडिक नेचर एंड प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज एसिडिक नेचर. तो वहाँ बिल्कुल अपोजिट होता है. तो गैसियस फेज में हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा. नाउ वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ अमीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. RnH2, R2NH secondary amine and R3N tertiary amine. So plus I effect, this alkyl group has plus I effect, and due to plus I effect it will increase the electron density of the nitrogen atom and hence increase basic nature. In secondary amine there are two alkyl group which have higher plus I effect. Plus I effect due to टू एल्काइल ग्रुप. यहाँ पर आपका प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू वन एल्काइल ग्रुप, whereas in tertiary there are three alkyl group which increase electron density on the nitrogen atom. Plus I effect due to three alkyl group. So more the alkyl group, more will be plus I effect and hence more will be
basic nature. Therefore we can say that tertiary are more basic than secondary, which are even more basic than primary. Tertiary are more basic than secondary because of higher plus I effect. Plus I effect due to 3 alkyl group. Secondary are more basic than primary due to plus I effect of the 2 alkyl group. And primary are more basic than ammonia because in ammonia there is no alkyl group, there is no plus I effect, while in primary there is one alkyl group. ये हम पहले भी कर चुके हैं, ऊपर इसका हमने जवाब दिया है कि primary amines are more basic than ammonia due to plus I effect of the alkyl group which increase the electron density of on nitrogen atom. तो ये गैसियस फेज में हमारा बेसिक नेचर है जो टर्शरी का हाईएस्ट होता है और प्राइमरी अमीन का सबसे कम होगा अमीन्स में. नाउ द नेक्स्ट इज इन एक्वस सॉल्यूशंस. तो गैसियस फेज में था. सेकंड इज इन aqueous solution. In aqueous solution, there are three factors which will work. The first is steric hindrance. Steric hindrance, more the number of alkyl group, more will be steric hindrance, and hence less will be availability of electron of the nitrogen atom for incoming acid. More the number of alkyl group, more will be steric hindrance, hence more less will be availability of electron of nitrogen atom to incoming acidic आयन या मोलिक्यूल जो भी है आपका. Hence less will be basic nature and hence less will be basic nature. क्या मतलब है इसका देखिए जरा. एक आपके पास टर्शरी अमीन है और एक प्राइमरी अमीन है. टर्शरी अमीन्स ड्यू टू 3 bulky alkyl groups. Tertiary amine due to presence of 3 bulky alkyl group, electron pair donation to the acidic group will be difficult, whereas in primary amine there is only one bulky alkyl group and it can donate electron pair easily to the acidic group. So primary amines will be more basic because of less steric hindrance. So primary will be more basic than secondary than tertiary as far as steric hindrance is concerned. एक फैक्टर steric hindrance की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी अमीन्स इसमें ज़्यादा बेसिक होने चाहिए और टर्शरी कम होने चाहिए. दूसरा सेकंड फैक्टर इज इंडक्टिव इफेक्ट, वो हम अभी कर ही चुके हैं. इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम कंसीडर करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, more the plus I effect, more will be electron density on nitrogen atom and hence more will be basic nature. So according to this factor tertiary should be more basic than प्राइमरी. ये हम गैसियस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट टर्शरी शुड बी मोर बेसिक एंड अकॉर्डिंग टू स्टैटिक हिंड्रेंस प्राइमरी शुड बी हाईएस्ट बेसिक. नाउ द थर्ड फैक्टर सोल्वेशन इफेक्ट. सोल्वेशन इफेक्ट
Now, according to this factor, basicity of amines depends on the stability of cation produced. Basicity, the basic nature of amines depends on stability of cation produced. For example, RNH2 give electron pair to the H ion, donate electron pair to H ion and produce a cation. Produce a cation R NH3 positive. RNH3 positive. Secondary amine, it will also donate electron pair to produce R2 NH2 positive, and tertiary amine will also donate electron pair to the H ion, produce R3 NH positive. Now, more the stability of these cations, more will be basic nature of these amines. कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, अमीन्स की जो बेसिक नेचर है वो उतना ही ज़्यादा होगा. नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दीज कैटायंस get solvated by water by the means of hydrogen bonding. More the solvation, more will be energy released and more will be stability. These cation got solvated. These cation get solvated. These cation get solvated कह सकते हैं, आप hydrated भी कह सकते हैं if solvent is water. These cations get hydrated by hydrogen bond. More the hydration, more will be stability. More the hydration, more energy is released. More energy will be released and hence more will be stability. अब किसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड से. अगर हम बात करें प्राइमरी अमीन की, दिस इज और प्राइमरी अमीन RNH3 पॉजिटिव, ये कैटायन हमारा बनता है. दिस प्राइमरी अमीन इज हाइड्रेटेड बाय हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स H2O, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. प्राइमरी अमीन्स आर सोल्वेटेड by 3 hydrogen bond. Secondary amines are solvated by 2 hydrogen bonds, R2NH. These are solvated by 2 hydrogen bonds, whereas tertiary amines are solvated by only 1 hydrogen bond. सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड से सोल्वेटेड होगा, क्योंकि बाकी 3 यहाँ पर जो है वो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे. सेकेंडरी में 2 हमारे एल्काइल ग्रुप हैं, 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि प्राइमरी में इट इज सोल्वेटेड बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. तो मोर द हाइड्रेशन, मोर विल बी एनर्जी रिलीज्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी. सो प्राइमरी अमीन से जो कैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी आपकी सबसे ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. तो इस फैक्टर के बेसिस पर अगर हम लेते हैं तो प्राइमरी शुड बी मोर बेसिक देन सेकेंडरी and secondary should be more basic than primary. So the net result of all these 3 factors, इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम इंक्लूड करते हैं, स्टेरिक इंड्रेंस अगर लेते हैं तो प्राइमरी शुड बी हाईएस्ट बेसिक, इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं तो टर्सरी शुड बी हाईएस्ट बेसिक, और सॉल्वेशन इफेक्ट अगर लेते हैं तब भी आपका प्राइमरी शुड बी हाईएस्ट बेसिक. तो इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है, the net resultant will be secondary in case of net result.
नेट रिजल्ट है वो हमारा इन केस ऑफ मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन की अगर बात आती है तो आपका सेकेंडरी शुड बी हाईएस्ट बेसिक देन प्राइमरी एंड देन टर्शरी, मीन्स सेकेंडरी CH3 ट्वाइस NH, secondary amine should be more than primary CH3 NH2 which should be more than tertiary thrice N। मिथाइल अमीन की बात है, अगर मिथाइल की बजाय कोई अदर अल्काइन है, अल्काइल अमीन है, फॉर अदर अल्काइल अमीन, अदर अल्काइल अमीन्स के लिए भी आपका सेकेंडरी विल रिमेन हाईएस्ट एंड देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी तो आपका हर केस में सेकेंडरी अमीन ही हाईएस्ट बेसिक होगा। मिथाइल अमीन है तो सेकेंडरी के बाद प्राइमरी का नंबर आ जाता है, और अगर आपका दूसरे अल्काइल अमीन है तो सेकेंडरी के बाद टर्शरी का नंबर एंड देन प्राइमरी। तो दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब इसमें कई बार आ जाता है कंपेरिजन ऑफ एराइल अल्काइल अमीन के साथ इनका कंपेरिजन। एराइल अल्काइल अमीन, अब एराइल अल्काइल अमीन क्या है हमारे, RNH(C6H5), इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं एरोमेटिक अमीन के साथ। अब एरोमेटिक अमीन में हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बेसिक नेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी बेसिक नेचर डिक्रीज होगा ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑफ द अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्काइल एराइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। एनिलीन से ये ज़्यादा बेसिक होते हैं बिकॉज दिस आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। अगर हम बात करते हैं सब्सटीट्यूएंट की, प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एरोमेटिक अमीन, ये आपका एरोमेटिक अमीन है एनिलीन। इसमें ऑर्थो, पैरा या मेटा पर अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट हो तब आपका बेसिक स्ट्रेंथ, तो वही आपकी बात आएगी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बेसिक नेचर, और अगर उसका माइनस आई इफेक्ट है इट विल डिक्रीज बेसिक नेचर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मीन्स एट ऑर्थो पोजिशन ऑल ग्रुप विल डिक्रीज द बेसिक नेचर। एट ऑर्थो ग्रुप, एट ऑर्थो पोजिशन, एट ऑर्थो पोजिशन, sorry, at ortho position all group will decrease basic nature। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नेचर होता है, तो मिथाइल ग्रुप विल इंक्रीज बेसिक नेचर, मिथाइल ग्रुप। तो अगर आपका पैरा पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप है, ये लीजिए, इट विल हैव मोर बेसिक नेचर देन मेटा पोजिशन, मेटा पोजिशन विल हैव मोर बेसिक नेचर देन aniline, and aniline will have more basic nature than methyl group at ortho। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने की वजह से इट विल इंक्रीज द बेसिक नेचर, और पैरा पोजिशन पर भी इंक्रीज करेगा, मेटा पर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन ऑर्थो पर ये आपका बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा। इसलिए एनिलीन से बेसिक नेचर कम हो जाता है ऑर्थो मिथाइल एनिलीन का। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो है जैसे NO2 ग्रुप है, इट विल डिक्रीज बेसिक नेचर। तो अगर NO2 ग्रुप अटैच होगा तो वो बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा। तो मेटा पोजिशन पर NO2 ग्रुप बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा, पैरा पर और भी ज़्यादा डिक्रीज कर देगा। सो पैरा पोजिशन पर उसका बेसिक नेचर मेटा से भी कम होगा, और ऑर्थो पर ऑर्थो इफेक्ट और लग जाएगा,
NO2 है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा, साथ में ऑर्थो इफेक्ट भी आ जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस आई इफेक्ट भी है, माइनस इफेक्ट भी है और इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी है। इन तीनों की वजह से बेसिक नेचर डिक्रीज होकर सबसे लोवेस्ट जाएगा। यहाँ पर खाली माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा और यहाँ पर कोई इफेक्ट न होने की वजह से हाईएस्ट होगा एनिलीन के अंदर। तो दिस इज अबाउट बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अरेंज द फ्लोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, तो उसके क्वेश्चंस यहाँ अभी साथ के साथ आप कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब आगे इसके बाद इसमें कुछ रिएक्शंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।